Now, in the revision process, I am today explaining Indian economy during 1950 till 1990. So as you know that after the independence, now India has to make policies for the development of the country. So what India use for the development of the country? So first of all, India uses IPR, Industrial Policy Resolution 1948. क्योंकि देश आजाद हो गया था, हमको इमीडिएटली प्रोग्रेस करनी थी, तो हमने इंडस्ट्री बेस्ड प्रोग्रेस की, जिसमें फर्स्ट आईपीआर 1948 को हमने बनाया। अब ये जो 1948 की हमारी फर्स्ट आईपीआर थी, इसमें हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को मेन फोकस हमने पब्लिक सेक्टर पर दिया। जो प्रोडक्शन होगा वो पब्लिक सेक्टर ज्यादा करेगा। तो उसके लिए जो हमने इकोनॉमिक सिस्टम यूज किया था, economic system. So what is economic system? So economic system refers to an arrangement by which central problems of an economy are solved. So that means economic system solves central problem. Now what are these central problems? So students in 11th class, you know what are the central problems, and they were what to produce, how to produce, and for whom to produce. These were the central problems that were to be solved by economic system. So for this, we have three types of economic systems. One, capitalism. Second, socialism, and mixed economy. And this is very general topic. Capitalism refers to free economy or market economy. Socialism, centrally planned economy. And India opted combination of these two, that is called as mixed economy. So India opted for mixed economy. So why India opted mixed economy? Because India wanted to give maximum social welfare to its people. And private sector were not able to provide this objective. So you should know, after the implementation of the Planning Commission, you should know when was the Planning Commission was introduced or set up. So Planning Commission was set up in 1950. प्लानिंग कमीशन क्या करता है कि वो प्लान को एग्जीक्यूट करेगा. So what is plan? You should know the definition of plan. Listen carefully. What is plan? So plan is a document showing detailed scheme, program, and strategy worked out in advance for fulfilling an objective. So whatever the objective you have, to fulfill that objective, what you require,
you required a perfect scheme, you required a strategy, you required a workout for that. So this is the plan. So for the successful of plan, इंडिया ऑप्टेड फॉर प्लानिंग कमीशन. तो एक अलग से हमारा प्लानिंग कमीशन बनाया गया. और अब आपको पता है कि अब प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया गया है, उसकी जगह पर अब नीति आयोग बनाया गया है. आई थिंक आपको पता होगा, अब नीति आयोग आ गया है. इट वाज 2015 में सेटअप किया गया था नीति आयोग. वैसे फंक्शन उसी की तरह है, मैं इसमें डिफरेंस आपको बाद में बता दूंगा. फिलहाल अब इतना ही याद रखें, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग तो नीति प्लानिंग कमीशन ही है हमारे पास. नाउ प्लानिंग कमीशन जब बना तो इंडिया ऑप्ट 5-year प्लान सिस्टम. So when we opted for the 5-year plan system, the first 5-year plan implemented from 1st April 1951 till 31st March 1956. तो इन 5 सालों के लिए हमने अपनी फर्स्ट 5-year प्लान बनाया. तो अब जब हमने ये प्लान बनाया, so what were the main objectives? What were the main objectives of our planning? So each and every student should learn these from your book very deeply, and all the content from the book you have to read. The first objective was growth. And you know, at the time of independence, we were having less than 2% growth. अब 2% से भी अगर कम ग्रोथ होगी तो इकोनॉमी कैसे बूस्ट अप कर पाएगा? So therefore, economy decide to increase the growth. अब ग्रोथ को बढ़ाने से उस समय टारगेट दिया गया कि we should increase the growth up to 6%. तो 2% से हमको 6% तक इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ाने का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था. सेकेंड वन इज मॉडर्नाइजेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट for the objectives of plan. So modernization. So what is modernization? So modernization means adopting new technology. हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज करें, साथ ही ना कि न्यू टेक्नोलॉजी यूज करें, हम विमेन एजुकेशन भी इंप्रूव करें. विमेन एजुकेशन को भी देना है, उनको हमें इक्वल राइट देना है. तो अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, केवल न्यू टेक्नोलॉजी को ही मॉडर्नाइजेशन समझ जाते हैं. हमको अपने विमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है. ये है हमारी मॉडर्नाइजेशन का लुक. तो मॉडर्नाइजेशन केवल प्रोडक्शन में नहीं, सोसाइटी में भी लाना था. हमको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी थी, साथ ही साथ विमेन को एजुकेट करना था, उनको वर्क प्लेस पर लेकर जाना था, उनसे काम भी कराना था, सो दैट इंडिया कैन मेक फास्टर प्रोग्रेस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर. सो इंडिया वांट टू बी सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ कंजम्पशन. तो इंडिया नहीं चाहता था कि हम कंजम्पशन करने की चीजें भी दूसरे कंट्री से मंगाएं. हमको बीच में यूएसए से भी फूड ग्रेन मंगाना पड़ा था अपने लोगों को खिलाने के लिए. अनाज बाहर से आया, और ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं है कि आप खाने की चीज के लिए भी आप दूसरों पर निर्भर रहे. सो देयरफॉर इंडिया ऑप्टेड फॉर सेल्फ रिलायंस. अब सेल्फ रिलायंस के लिए उन्होंने एक स्पेशल फोकस किया था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और उसके लिए उन्होंने स्पेशल किया कि जो भी चीज हम बाहर से मंगा रहे हैं उनको अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करें, फॉरेन डिपेंडेंस पे कम हो जाएं, उन पे कम निर्भर रहें, और हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, स्पेशली फूड ग्रेन को. ये था हमारा सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज इक्विटी. इक्विटी, समानता लानी है. अब समानता कैसे आ सकती है? अगर आप ऊपर के तीनों ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे तो नेचुरली है ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हुए आप इक्विटी के बेस पर करें.
अब ग्रोथ है, ग्रोथ कंट्री की तब तक नहीं आएगी जब तक आप सभी को साथ लेकर नहीं चलोगे। इसीलिए अब आप देखते हो कि अब हमारे जो न्यू गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर अंडर एनडीए की गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, इन्होंने भी क्या किया है इक्विटी लाने के लिए, तो एक इन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, इस तरह के इन्होंने वर्ड्स बोले हैं। तो वो इक्विटी का बेस्ड है, ये इक्विटी है, समानता लाना है कि सभी को साथ लेकर चलना है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द एग्रीकल्चर सेक्टर। So, as you know that at the time of independence, 70 to 75% people were engaged in agriculture sector. So if the 75% of your working population are engaged in agriculture sector, that means this sector should be increased. So what are the problems? So first of all, we should know the problems of this sector. The first problem was low productivity. लो प्रोडक्टिविटी, हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो बहुत लो था। जनरली हम लोग स्टैग्नेशन पर ही थे। स्टैग्नेशन का मतलब होता है जितना आपको कंजम्पशन के लिए चाहिए उतना ही आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कंजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर आप प्रोडक्शन करेंगे तो आप आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रोडक्शन लो था, तो ऐसा नहीं था कि हम लोग भूखे मर रहे थे, नहीं, बट प्रोडक्शन लो था। लो का मतलब है कि हम स्टैग्नेशन लेवल पर थे, जितना चाहिए था उतना ही हम प्रोडक्शन कर पा रहे थे। अगर इन बिटवीन किसी ईयर प्रोडक्शन नहीं हुआ, सपोज कोई बीमारी लगी फसलों को, या ज्यादा बारिश हो गई, या बाढ़ आ गई, या फिर सूखा पड़ गया, उस केस में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फिर आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए हमने उस फेज में हमको अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ा बीच में। तो ये लो प्रोडक्शन पे था। दूसरा, हमारे यहां पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आई थिंक सब बच्चों को पता होगा बेटे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस कि व्हेन मोर पीपल आर एंगेज्ड देन द एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो अगर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 10 लोगों की रिक्वायर्ड है और अगर वहां पे 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो 5 जो एक्स्ट्रा हैं दे विल बी कॉल्ड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ये बहुत बड़ी मात्रा में थे हमारे पास। देन वी वर डिपेंड ऑन रेनफॉल, क्योंकि हमारे पास कोई डिपेंडेड ऑन रेन। अब कोई मॉडर्न मींस तो इरिगेशन का था नहीं, तो नेचुरली हम लोग रेनफॉल पर ज्यादा डिपेंड थे। एक प्रॉब्लम ये थी। इसके बाद हमारे पास सब्सटेंस फार्मिंग थी। सब्सटेंस फार्मिंग मींस, जैसे मैंने बताया ऊपर आपको, कि हमें केवल अपने लिए प्रोडक्शन करना है, ओन यूज के लिए प्रोडक्शन करना है। तो जितना हमको कंजम्पशन करना है उतना ही प्रोडक्शन करना है। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस फार्मिंग। तो हम लोग तो थे नहीं ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। फिर इसके लिए हमारे पास आउटडेटेड हमारी टेक्नोलॉजी थी। वही हम पुराने तरीके से काम करते थे, वही बैलों का इस्तेमाल करके, वही बीज बनाने थे। तो क्या करते थे, जो इस साल हमारी फसल हो गई उसी में से थोड़ा सा बीज रख लिया, अगले साल उसको उगा दिया, फिर वो फसल हुई उसमें से उगा दिया। इन बिटवीन अगर बीच में किसी साल आपका प्रोडक्शन लो रह गया, बरसात कम रह गई, तो बीज की क्वालिटी लो हो जाएगी। बीज की क्वालिटी लो होगी तो अब नेक्स्ट ईयर जो प्रोडक्शन करने वाले हो उसकी क्वालिटी पहले से ही लो हो जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे पास सही नहीं थी। और हमारे पास आपको पता ही है कि लैंडलॉर्ड सिस्टम था, वो बहुत हैवी रेंट लिया करते थे। ये थे हमारे प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इनको सोल्व करने के लिए क्या किया, तो लैंड रिफॉर्म्स किए गए हमने। लैंड रिफॉर्म्स में भूमि सुधार किए गए। तो मैंने आपको याद हो बताया था, सबसे पहले हमारा जो लैंड रिफॉर्म था यानी भूमि सुधार जो किया वो था हमारे पास मेन
एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, कि जो बीच में बिचौलिया होते थे गवर्नमेंट ने उनको हटाने की कोशिश की। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये लैंड रिफॉर्म्स था, क्योंकि जब भी बीच में जो पर्सन आएगा वो अपना मार्जिन रखेगा, ऐसे मार्जिन कम होते होते एक्चुअल टेलर्स तक बहुत कम बेनिफिट पहुंच पाता था। सेकंड, आपको याद होगा मैंने बताया था कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मीनिंग मैंने बताया था कि अगर आपके पास फ्रेगमेंटेड लैंड है, लिसन केयरफुली ऑल द स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंटेड लैंड दैट मींस आपकी लैंड बिखरी पड़ी है, कुछ इधर कुछ उधर, अलग अलग जगहों पर अगर आपकी लैंड है तो उसको उसके इक्वल एक ही जगह पर दे देना, वो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग कहलाता है। जैसे मान लो सपोज करो आपका एक फील्ड ये है ए, एक आपका फील्ड इधर है 5 किलोमीटर दूर बी, एक आपका फील्ड इधर है सी, ये काफी दूर दूर है। मान लीजिए ये है 2 हेक्टेयर का, ये है 5 हेक्टेयर का और ये है 3 हेक्टेयर का। अब अगर आपको एक साथ एक ही जगह पर 10 हेक्टेयर लैंड दे दी जाए, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो जो आपकी अलग अलग जमीन थी एक साथ एक ही जगह पर देना कंसोलिडेशन कहलाता था। इससे बेनिफिट यह होता था कि आसानी से अपनी देखभाल आप फील्ड की कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास लैंड सीलिंग। तो लैंड सीलिंग मैंने बताया कि मैक्सिमम लिमिट फिक्स करना, कि इससे ज्यादा किसी के पास अगर जमीन हुई तो गवर्नमेंट उसको टेक ओवर कर लेगी। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें आप कह सकते हो कोऑपरेटिव फार्मिंग। ये हमारे कुछ लैंड रिफॉर्म्स थे जो गवर्नमेंट ने इनको इंप्लीमेंट किया था। तो आपको आज मैं ये 2 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं एग्रीकल्चर के और आपको इनिशियल प्लानिंग्स के। तो आप आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा इस पे और डिस्कस करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेक्शन। सो अगर आप जो मैंने ये हैंड राइटिंग से लिखा है अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप शुरू से सभी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट वन, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, हरी अप। I think you have done it. Now this is the second one. Done. Third one for objectives. The fourth agriculture sector. Problems बताए मैंने इसमें आपको, ये सब पूछे जाएंगे क्लास में, ध्यान रखना। इसके बाद लास्ट लैंड रिफॉर्म्स। ऑल डन? सर बताइए। सर एक बार सेकंड थर्ड दिखा सकते हो? अब तो देर होगी भाई। ओके सर, मैं मंगा लूंगा।